operator on an n-dimensional vector space V, then T is diagonalizable if and only if the minimal polynomial has a linear factor. अगर कोई linear operator है from the vector space V to V, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल उसके पास है अगर t माइनस लैम्डा 1 t माइनस लैम्डा 2 उसकी पावर n1 है n2 अप टू t माइनस लैम्डा k की पावर n k, where lambda 1 lambda 2 up to lambda k, these are the distinct eigenvalues, then the minimal polynomial has this form: t minus lambda 1 की power m1, t minus lambda 2 की power m2 and t minus lambda k की power mk, where mi is greater than equal to 1 because at least they have the same root, so at least mi has to be 1 and that will be less than equal to ni for everywhere. With the linear operator on a finite dimensional vector space V, it is given when T is diagonalizable if and only if its minimal polynomial is of this form. Means they have the linear factors only. Proof. So we have assumed that T is diagonalizable. So let us assume that T is diagonalizable. T is diagonalizable and lambda 1, lambda 2 up to lambda k, these are the distinct eigenvalues. These are the distinct eigenvalues of T. Now we will define Pt. It is defined as t minus lambda 1, t minus lambda 2 up to t minus lambda. We have defined this thing. Claim करना है Pt is a minimal polynomial. Pt is a minimal polynomial. Theorem 7.14 is that T is a linear operator on an n-dimensional vector space V. Pt is the minimal polynomial. Then scalar lambda is an eigenvalue of T if and only if P of lambda is 0, and hence the characteristic polynomial and minimal polynomial have the same 0. P of lambda 1 is 0, P of lambda 2 is 0, P of lambda k is 0. This implies there exists an ordered basis beta, say V1, V2 up to Vn, consisting of eigenvectors. Consisting of eigenvectors of T. Corresponding to one eigenvalue, lambda 1, we have seen that there exists more than one eigenvector. We have considered Vi is any element from this, and T minus lambda j can be any element of 1, 2, 3 up to k. From this T minus lambda j डिवाइड करेगा Pt को, T minus lambda j डिवाइड करता है Pt को, because it has a factor of this form T minus lambda 1, T minus lambda 2. तो for बीटा जो है बेसिस है consisting of eigenvector. This is a basis consisting of eigenvectors of T, and lambda 1, lambda 2 up to lambda k, these are the distinct eigenvalues, and we know that from this T minus lambda j डिवाइड करता है pt को डिवाइड करता है, so pt कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म t माइनस लैम्डा j इंटू जो बाकी जो टर्म बच गई उसको हम अज्यूम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टी माइनस लैम्डा जे यहीं पे है, टी माइनस लैम्डा जे, तो इस टर्म को छोड़ के जितना जो हमारे पास फैक्टर बचे उसको मैंने अज्यूम कर लिया क्यू जे टी, तो टी माइनस लैम्डा जे डिवाइड करता है पी टी को, सो पी टी कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, एंड फॉर एनी वी आई बिलोंगिंग टू द बेसिस एलिमेंट बीटा कंसिडर करते हैं हम टी माइनस लैम्डा जे ऑफ वी आई, बिकॉज ये आपका आइगन वेक्टर होता है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाता है. फॉर एग्जांपल वी, क्योंकि वी जो है आपका वी आई आइगन वेक्टर है, तो टी ऑफ वी आई इज इक्वल टू समथिंग लैम्डा आई वी आई. इट में भी अनदर आई की जगह नोटेशन डिस्टिंक्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल लैम्डा आई की जगह लैम्डा जे हो सकता है. ठीक है, सो T of Vi is equal to lambda I Vi because this is an eigenvector corresponding to eigenvalue. Eigenvalue can be something different. Lambda j can be also there. So we can consider T of Vi is equal to lambda j Vi. Then T minus lambda j identity of V is Vi is 0. So this will be 0. तो यहाँ से polynomial space से we consider capital P of T is capital T minus lambda j identity and q j of capital T. Then P capital T इस पे अप्लाई करेंगे क्योंकि T जो है आपका लीनियर ऑपरेटर है वेक्टर स्पेस V से लेके V पे, so it will be apply on the vector space V. So T minus lambda j identity of V and q j of T. So this is any vector basis element we have considered here Vi
So it can be an eigenvector. It will be 0 into Qj. So this implies P capital T of Vi is 0 for every I, because we have considered any element Vi. तो अभी तक जो हमने क्या किया है, मैंने अज्यूम किया टी इज डायगोनालाइजेबल है एंड लैम्डा वन लैम्डा टू अप टू लैम्डा के दीज आर द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज. तो मैंने डिफाइन किया है पी टी इज टी माइनस लैम्डा वन टी माइनस लैम्डा टू अप टू टी माइनस लैम्डा के. पी टी टेक्स ईच वैक्टर इन द बेसिस v इंटू जीरो. तो बेसिस हर एक एलिमेंट को, ये यहाँ पे vi है, vi इज द बेसिस एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट को जीरो के इक्वल लेके जाता है. तो दिस इम्प्लाइज दिस इज आइडेंटिकली जीरो. तो ये बताता है कि इट फॉलोज दैट पी ऑफ टी इज टी जीरो सिंस पी टी टेक्स द एवरी एलिमेंट टू द जीरो. बेसिस एलिमेंट को जीरो पे लेके जाता है. तो पी ऑफ टी इज टी जीरो. देयरफॉर पी टी इज द मिनिमल पॉलिनोमियल. ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, एक पॉलिनोमियल मेरे को चाहिए लीस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल, लीस्ट डिग्री monic polynomial which satisfy p of t is t0. So we have this polynomial pt is t minus lambda 1, t minus lambda 2, t minus lambda k. इससे क्योंकि they have the same eigen values lambda 1 lambda 2, these are the distinct eigen values of t, and we know that minimal polynomial have the same roots. तो t minus lambda 1 t minus lambda 2 up to t minus lambda k, इससे छोटा polynomial आपका हो नहीं सकता है. So Pt is the monic polynomial of least degree which satisfy p of t is t0. So this implies Pt is a minimal polynomial of t. हम assume कर लेते हैं कि lambda 1 these are the distinct scalars such that minimal polynomial has this factor, then p of lambda is 0 obviously, and by that theorem p of lambda is 0. So this implies lambda is are the eigenvalue of t. Assume कर लेते हैं. Now we apply the mathematical induction n on the dimension of vector space v. तो मेरे को क्या क्लेम करना है, मेरे को क्लेम करना है t is diagonalizable. तो हम यहाँ पे करेंगे प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन. बाय मैथमेटिकल इंडक्शन on dimension of the vector space v. Dimension of the vector space v. Case first, dimension of the vector space v is 1. So one dimensional vector space है, तो there exists a basis consisting of only one vector. T is a linear operator from this to this. फिर करता हूँ तो T of V that will be again a member of V VF, बट इसका डायमेंशन जो है वो है वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है. स्पैनिंग सेट है बीटा, कोई भी वेक्टर होगा वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा. मैं अज्यूम कर लेता हूँ लैम्डा टाइम ऑफ V होगा. लैम्डा कैन बी जीरो आल्सो. तो T ऑफ दिस इज दिस, देन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो होगा आपके पास वो आपका होगा T ऑफ V का कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस इज बीटा, दैट विल बी lambda. It is now since A is the matrix which is consisting of 1 cross 1 matrix. Now characteristic polynomial जो होता है आपके पास वो होता है determinant of A minus T identity. और ये आपका 1 cross 1 matrix है, so that will be the determinant of lambda minus T. Identity is 1 ही हो जाएगा. तो 1 cross 1 matrix का determinant कितना होता है, अगर कोई एक मैट्रिक्स है A cross A, तो determinant of A is simply A. तो इसका जो determinant हो जाएगा वो हो जाएगा lambda minus T. And characteristic polynomial के जो रूट होते हैं f of t is 0, that gives the eigenvalue. So lambda minus t is 0, so this implies t has to be lambda. So this is the eigenvalue. तो किस फॉर्म का है, t lambda minus t कर लीजिए, lambda minus t होगा. तो मिनिमल पोलिनोमियल, क्योंकि हमें पता है कि मिनिमल पोलिनोमियल जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो डिवाइड करता है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को. आल्सो दे हैव द सेम रूट. तो मिनिमल पोलिनोमियल जो है देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी लैम्डा माइनस टी. तो इनका तो अब यहाँ पे अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू कितनी है, वन ही आएगी. तो बाय डेफिनेशन ये हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होती है किसी भी आइगन वैल्यू की वो लेस देन इक्वल टू होती है अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी. अब ये वन है तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी वन हो जाएगी. तो फॉर लैम्डा इक्वल टू वन इट हैज वन आइगन वेक्टर. पढ़ी थी कि टी इज डायगोनालाइजेबल इफ एंड ओनली इफ geometric multiplicity of lambda I is same as arithmetic multiplicity of lambda I for every I. So we can say that T is diagonalizable. So this implies T is diagonalizable. We'll assume that the result is true. Result is true for the dimension of vector space V is K, which is strictly less than for some
k which is greater than 1. The dimension of vector space V is n, and we are going to assume that W is range of T minus lambda k identity. We are since T is a linear operator from vector space V to itself, and you know that lambda 1, lambda 2 up to lambda k, these are the distinct eigenvalues, then we can define a linear operator T minus lambda identity, which is also a linear operator from vector space V to itself. Then this is a subspace. Now we know that the eigenspace E lambda k. E lambda k is an eigenspace which is defined as null space of T minus lambda k identity. So range space, you know that if T minus lambda k identity is a vector is a linear operator from V to itself, then kernel of T minus lambda k identity, that is a subspace of V, and range of T minus lambda k identity, that will be a subspace of codomain. So we can apply the rank nullity theorem. If rank nullity theorem says that if U and V are two vector subspaces, vector spaces, and T is a linear operator from linear map from U to V, where the dimension of vector space U is finite, then rank T, dimension of range of T plus dimension of kernel of T is dimension of the vector space. So we will apply here. Let the dimension of V is n, and W is defined as the range of T minus lambda k identity. Now since lambda I are the eigenvalue, we can define E lambda k is the eigenspace corresponding to this. So dimension of E lambda k is the dimension of null space of T minus lambda k identity, which is greater than equal to 1. Now since lambda is an eigenvalue है, तो इसके corresponding eigenvector मेरे को मिलता है जो कि नॉन जीरो होता है. So this यहाँ पे at least one eigenvector मेरे को मिलेगा. So now I am applying the rank nullity theorem, which says that rank of T minus lambda k identity from this rank of T minus lambda k identity plus nullity of T minus lambda k identity, that will be dimension of the vector space, because इसका dimension मैंने assume किया है n. So V nullity will be the dimension of vector space V, which is n. So T minus lambda k identity is n minus nullity of T minus lambda k identity. We know that this is greater than equal to 1. Then minus of we multiply with minus 1, then T minus lambda k identity is less than equal to minus 1. So adding n on both sides, n minus n of this is less than n minus 1. So this quantity is less than equal to n minus 1, which is strictly less than n. Rank T minus lambda k identity is strictly less than n. This implies it cannot be onto. W is equal to range of T minus lambda k identity. This is a subspace of V, and its dimension is less than n है, less than n है. So this implies W is different from V. Okay? If W is 0, अगर जो आपका सब स्पेस है वो है सिंगलटन 0 है, यानी कि रेंज ऑफ T minus lambda k identity is singleton 0. This implies T minus lambda k identity of X is 0 for every X belonging to the vector space V. This implies T minus lambda k identity is identical 0, because हर एक एलिमेंट को ये 0 पे लेके जाता है. This implies this is a 0 operator. So this implies T is equal to lambda k time of identity. यानी कि lambda time of identity. If it is an identity operator, then lambda k से इसको हम multiply करेंगे. This is diagonalizable. It is similar to a diagonal matrix. So this implies T is diagonalizable. Dimension of W is greater than 0, and it is strictly less than n. We know that range of T, because we have defined the T minus lambda k identity, we have defined from the vector space V to V, and we know that from the section 4.5.4
That is called a T invariant if T of W is contained in W. And we have seen the examples: range of T, null space of T, singleton zero, and fourth vector space V. These are the T invariant subspaces. These are T invariant subspaces. So from that we can say that range of T minus lambda k identity, range of T minus lambda k identity is T invariant. Is T invariant subspace of V. So we have seen that W is T invariant. W is T invariant subspace of V. That is, अगर T invariant subspace है, then we can define TW from W2 itself such that TW of any element X is T of X for every element X belonging to capital W. That identity. Now since PT जो है आपको given है, PT is T minus lambda 1. ये हम assume करके चले थे कि lambda 1, lambda 2 up to lambda k are the scalars such that P of T has this expression T minus lambda 2 up to T minus lambda k. ये मैं assume करके चला हूँ कि मिनिमल पॉलिनोमियल है. So be the minimal polynomial of T. ये हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल है. This is the minimal polynomial of T. Minimal polynomial, so this implies P of T is T0 by definition of minimal polynomial. This implies it will take every element to 0. T of V is T0 of V and T is identical 0 for every element V belonging to the vector space V. It will be capital P of T, that is capital T minus lambda 1, T minus lambda 2 up to T minus lambda k. आइडेंटिटी पे आ जाएगा. This is equal to T0 operator. We operate on V, that is Pt of V is T minus lambda 1 identity, T minus lambda 2 identity up to T minus lambda k minus 1 identity, T minus lambda k identity of V. राइट हैंड साइड में कितना T0 of V. नाउ इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ T माइनस लैम्डा के आइडेंटिटी ऑफ V. आपका जो एलिमेंट है T माइनस लैम्डा के आइडेंटिटी ऑफ V, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ W जो कि आपका हो जाएगा रेंज ऑफ T माइनस लैम्डा की आइडेंटिटी. सो इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ X. सो दिस इम्प्लाइज T minus lambda 1 identity, T minus lambda 2 identity up to T minus lambda k minus 1 identity of X is 0. GT defined as T minus lambda 1, T minus lambda 2 up to T minus lambda k minus 1 identity minus identity. Now G of capital T of, इफ मैं स्मॉल टी को रिप्लेस कर देता हूँ तो मेरा क्या बनेगा, यही मिलेगा कैपिटल T माइनस लैम्डा 1, T माइनस लैम्डा 2 आइडेंटिटी ऑफ दिस. सो जी टी ऑफ X, so this implies this, and ये आपका किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है. तो जी टी ऑफ X इज 0 फॉर एवरी एलिमेंट X बिलोंगिंग टू W. फॉर X क्योंकि किसका मेंबर है, रेंज T का मेंबर है. रेंज T किसके है, W के इक्वल. सो फॉर एवरी एलिमेंट X belonging to W which is a member of range of T minus lambda k identity. This implies G of T is T0 for every X belonging to W. तो मेरे को एक पॉलिनोमियल मेरे को मिल गया GT, this polynomial which satisfies G of T equal to T0 for every element X belonging to W. कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वो इज द लीस्ट मोनिक डिग्री पॉलिनोमियल होता है दैट सेटिस्फाई P of T equal to T0. एंड फिर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी इसी में
कि अगर कोई पोलिनोमियल है जी ऑफ टी इक्वल टू टी जीरो सेटिस्फाई करता है, तो जो पोलिनोमियल होता है, जो मिनिमल पोलिनोमियल होता है, वो आपका डिवाइड करता है जी टी को। एंड हैंस फिर हमने बोला था कि मिनिमल पोलिनोमियल डिवाइड करता है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को, पी टी डिवाइड करता है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को, एफ टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पोलिनोमियल अगर मिनिमल पोलिनोमियल होगा टी डब्ल्यू पे ऑन द सबस्पेस डब्ल्यू, वो जी टी को डिवाइड करेगा। दिस implies द minimal polynomial of tw divides gt, जो कि है आपका t माइनस लैम्डा वन, t माइनस लैम्डा टू अप टू t माइनस लैम्डा थ्री। तो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, क्योंकि ये आपका जो है मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ टी डब्ल्यू डिवाइड्स दिस पोलिनोमियल, तो यहाँ से हमें क्या मिला था कि g ऑफ t इज t माइनस लैम्डा वन, t माइनस लैम्डा टू अप टू t माइनस लैम्डा के। ये हमने कंसीडर किया था। देन जी ऑफ टी इज डिफाइंड एज टी माइनस लैम्डा वन आइडेंटिटी, टी माइनस लैम्डा टू आइडेंटिटी अप टू टी माइनस लैम्डा के आइडेंटिटी। एंड इसको हम अप्लाई करते हैं क्योंकि पी ऑफ टी इज टी जीरो गिवन है, ये आपका पी ऑफ टी था, पी ऑफ टी, पी ऑफ टी ये आपके पास है। देन पी ऑफ कैपिटल टी इज टी नॉट, इसका मतलब पी ऑफ टी ऑफ वी इज टी टाइम ऑफ टी जीरो ऑफ वी, दैट इज जीरो। तो वी पे मैं इसको अप्लाई करता हूँ वी, तो पी ऑफ टी इज टी माइनस लैम्डा वन आइडेंटिटी, टी माइनस लैम्डा टू आइडेंटिटी अप टू टी माइनस लैम्डा के माइनस का वन इंटू टी माइनस लैम्डा के आइडेंटिटी ऑफ वी। और सिंस ये आपका जो होता है डब्ल्यू में बिलोंग करता है, कैपिटल टी माइनस लैम्डा की आइडेंटिटी मैंने ऑपरेटर डिफाइन किया था वेक्टर स्पेस वी से लेके वी पे। सो अगर मैं इस पर कोई भी एलिमेंट अप्लाई करता हूँ टी माइनस लैम्डा के आइडेंटिटी ऑफ वी, so it will be a member of range of t minus lambda की आइडेंटिटी, दैट इज w का मेंबर है। सो मैंने अज्यूम कर लिया कुछ एलिमेंट होगा x। तो p ऑफ कैपिटल T इज t माइनस लैम्डा वन आइडेंटिटी, t माइनस लैम्डा टू आइडेंटिटी अप टू t माइनस लैम्डा के माइनस वन आइडेंटिटी, और ये एलिमेंट है मेरा x। एंड राइट हैंड साइड में कितना है, जीरो है, तो दिस इज जीरो। तो इसको पॉलिनोमियल में डिफाइन कर लेता हूँ जी टी, कंसिडर कर लेते हैं जी ऑफ टी इज टी माइनस लैम्डा वन आइडेंटिटी, टी माइनस लैम्डा टू आइडेंटिटी अप टू टी माइनस लैम्डा के माइनस वन ऑफ आइडेंटिटी। सो ये मेरा पॉलिनोमियल है जी टी। नाउ जी ऑफ कैपिटल टी अगर मैं रिप्लेस करता हूँ तो ये मेरा वापस से यही हो जाएगा। एंड ऑफ एक्स, एक्स किसका मेंबर है, रेंज का, range of t minus lambda की identity, then g of t of x is t minus lambda one identity up to t minus lambda k minus one identity of x, and ये आपका किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो दिस implies g of t of x is zero for every element x belonging to w। तो इसका मतलब क्या हुआ कि g of t is t zero for every element x belonging to dw। सो यू नो दैट द मिनिमल पोलिनोमियल की डेफिनेशन जो है आपको पता है कि इट इज द लीस्ट मोनिक डिग्री पोलिनोमियल विच सेटिस्फाई पी ऑफ टी इक्वल टू टी जीरो। और ये मेरे पास एक पोलिनोमियल है जी टी जो कि सेटिस्फाई करता है जी ऑफ टी इक्वल टू टी जीरो फॉर एवरी एलिमेंट इन एक्स, फॉर एवरी एलिमेंट इन डब्ल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिनिमल पोलिनोमियल है आपका टी डब्ल्यू का, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ टी डब्ल्यू, दिस इम्प्लाइज मिनिमल पोलिनोमियल, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ टी डब्ल्यू डिवाइड करेगा आपका द पोलिनोमियल जी टी को। एंड जी टी जो है आपका लीनियर फैक्टर में है, टी माइनस लैम्डा वन, टी माइनस लैम्डा टू, टी माइनस लैम्डा के माइनस वन। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो ये जी टी के इक्वल हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज मिनिमल पोलिनोमियल कैन बी ऑफ, तो मिनिमल पोलिनोमियल इसको डिवाइड करेगा। तो मिनिमल पोलिनोमियल कैन बी टी माइनस लैम्डा वन, टी माइनस लैम्डा टू, मतलब इनका लीनियर फैक्टर हो सकता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जी टी के इक्वल हो सकता है। तो टी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है हमारे पास, टी माइनस लैम्डा टू।
k minus 1 तक. So by theorem 7.14 again p of lambda k, ये जो है मिनिमल पॉलिनोमियल ऑन टी डब्ल्यू, तो दिस इज नॉन जीरो. तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा के इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ टी डब्ल्यू. लैम्डा के इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ टी डब्ल्यू. मिनिमल पॉलिनोमियल मैंने अज्यूम किया था बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, मैंने अज्यूम किया था कि अगर इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है अगर लीनियर फैक्टर की फॉर्म में है देन वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा अगर डायमेंशन लेस देन एन है. तो इसका जो डायमेंशन है मैंने अज्यूम करके चला था कि डायमेंशन जो है W का वो आपका ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन एन है. अगर डायमेंशन जीरो था तो अगर डायमेंशन जीरो के इक्वल था तो टी आपका आया था लैम्डा के आइडेंटिटी, जो कि स्केलर टाइम है आइडेंटिटी की, जो कि डायगोनलाइजेबल होता है. सेकंड केस हमने ये अज्यूम किया था कि डायमेंशन ऑफ W इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन एन. और इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या था कि अगर मेरा डायमेंशन लेस देन एन है, डायमेंशन मेरा k है, लेस देन एन है एंड मिनिमल पॉलिनोमियल इस फॉर्म का है तो वो डायगोनलाइजेबल हो जाता है. तो मिनिमल पॉलिनोमियल जो है मेरा लीनियर फैक्टर का ही रहेगा, इसी फॉर्म का रहेगा मैक्सिमम. एंड डायमेंशन जो है मेरे को पता है कि लेस देन एन है. तो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस तो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस तो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस by induction hypothesis TW is diagonalizable. सर वी क्लेम दैट जो W है आपका रेंज स्पेस T माइनस लैम्डा के आइडेंटिटी एंड उसका इंटरसेक्शन नल स्पेस ऑफ T माइनस लैम्डा के आइडेंटिटी, ये आपका सिंगलटन जीरो होता है. नल स्पेस ऑफ T माइनस लैम्डा के आइडेंटिटी, अभी मैंने चेक किया कि अभी हमने देखा था कि लैम्डा के जो है आइगन वैल्यू नहीं है TW का. लैम्डा के इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ टी डब्ल्यू बिकॉज पी ऑफ लैम्डा के जो है आपका जीरो के इक्वल नहीं होता है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो लैम्डा के इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ टी डब्ल्यू. अगर इसके अंदर आ जाता है नल स्पेस के अंदर, तो नल स्पेस ऑफ टी माइनस लैम्डा के आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या होता है, वे सारे वेक्टर होते हैं एक्स बिलोंग टू वेक्टर स्पेस वी सच दैट टी माइनस लैम्डा के आइडेंटिटी ऑफ एक्स इज जीरो. यानी कि एक्स बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस वी सच दैट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा के ऑफ एक्स. ठीक है, तो नल स्पेस इसका मतलब ये है, इसको हम बोलते हैं आइगन स्पेस ऑफ यू लैम्डा के. नाउ सिंस लैम्डा के आइगन वैल्यू नहीं है, लैम्डा इफ लैम्डा के इज एन आइगन वैल्यू देन वी कैन फाइंड ए नॉन जीरो वेक्टर x सच दैट टी ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा के टाइम ऑफ x. अगर लैम्डा के आइगन वैल्यू है देन वी कैन फाइंड ए नॉन जीरो वेक्टर x सच दैट दिस कंडीशन होल्ड, यानी कि t माइनस लैम्डा के आइडेंटिटी ऑफ x इज जीरो एंड x इज नॉन जीरो. बट लैम्डा की आइगन वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन नॉट फाइंड एनी x जो कि नॉन जीरो होगा एंड दैट बिलोंगिंग टू वी कैन नॉट फाइंड एनी वेक्टर x सच दैट दिस विल बी जीरो, जो कि आपका नॉन जीरो है. तो दिस इम्प्लाइज नल स्पेस ऑफ t माइनस लैम्डा की आइडेंटिटी इज सिंगल जीरो. लैम्डा के इज नॉट एन आइगन वैल्यू, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x non-zero such that t of x is lambda kx. यानी कि केवल केवल पॉसिबल है जब x इज जीरो पॉसिबल है यहाँ पे. तो यहाँ पे जो इनका इंटरसेक्शन है वो आपका जीरो है. बीटा वन इज v1 v2 up to vm. this is a basis for w consisting of eigenvectors of tw and hence of t. सिमिलरली इसके लिए मैं बेसिस अज्यूम कर लेता हूँ बीटा टू. बीटा टू इज ए बेसिस w1 w2 up to wp is a basis for null space of t minus lambda की आइडेंटिटी, जो कि आपका है आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा की. रेंज ऑफ t minus lambda की आइडेंटिटी प्लस डायमेंशन ऑफ null space of t minus lambda k identity, that is dimension of the vector space V. Now by rank nullity theorem on this, इसका डायमेंशन कितना है m और इसका डायमेंशन कितना है n है p, तो m plus p is dimension of
V is dimension of the vector space V is n, dimension of the vector space V अगर n है, एंड एक मेरे पास सेट है S या बीटा एक सेट है जिसके अंदर V1 V2 अप टू Vn एलिमेंट है, का डायमेंशन n है, ये n है, या तो मैं इसको शो कर देता हूँ लीनियरली इंडिपेंडेंट है, या इसको मैं शो कर देता हूँ कि ये स्पैन करता है V को, स्पैनिंग सेट ऑफ बीटा इज V, देन ये ऑटोमेटिकली बेसिस हो जाती है. So we can get a basis beta consisting of eigenvectors of T, and it contain n element, n eigenvector. So T will be diagonalizable. T will be करना है इन दोनों का यूनियन इज बीटा इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो बीटा 1 यूनियन बीटा 2, तो मैंने जूम किया बीटा, जो क्लेम करना है इज Li सेट. तो कंसिडर करते हैं हम स्केलर a1 a2 अप टू am, b1 b2 up to bp. These are the scalars such that a1 v1 plus a2 v2 plus am vm plus b1 w1 plus b2 w2 plus bp wp is 0. इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ x, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ y. So let x is summation of ai into vi, आई की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेके m तक, और y को मैंने ले लिया समीशन vi इंटू wi, की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेके p तक. तो वी हैव x प्लस वाई इज 0, जो है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है वी आईज का, और बीटा 1 जो है आपका बेसिस है v1 v2 अप टू vm. तो ये बेसिस है, इसके लिए बीटा 1 की बेसिस है. तो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ, ये बेसिस किसकी थी w की, दिस इज द बेसिस फॉर w, जो कि आपका रेंज ऑफ t माइनस लैम्डा की आइडेंटिटी है. एंड बीटा 2 जो बेसिस है वो है आपकी नल स्पेस ऑफ t माइनस लैम्डा की आइडेंटिटी की. सो x, क्योंकि ये बेसिस है तो कोई भी एलिमेंट अगर आप लेते हैं, बिकॉज x जो है लीनियर कॉम्बिनेशन है बेसिस एलिमेंट का, v1 v2 दीज आर द बेसिस एलिमेंट ऑफ दिस, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर लेंगे तो अगेन इट विल बी अ मेंबर ऑफ w. This is an element of W. Similarly, this is an element of Y is an element of null space of T minus lambda identity. This will be a member of T minus lambda identity. This is a member of range of T minus lambda identity. Lambda K identity. तो यहाँ से क्या मिला, x जो है आपका बिलोंग करता है W में, एंड यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई इज 0. तो x जो मेंबर है आपका W का है, दिस इज W, so x इज बिलोंगिंग टू W, एंड आल्सो y को हम लिख सकते हैं, यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज x को मैं लिख सकता हूँ माइनस वाई. x इज एन मेंबर ऑफ W एंड x इक्वल टू माइनस वाई, वाई किसका मेंबर है, इसका है. तो दिस इज एन मेंबर ऑफ नल स्पेस ऑफ t माइनस लैम्डा की आइडेंटिटी. तो x जो है आपका एक वेक्टर है जो कि W में भी है और नल स्पेस में भी है, बट इनका इंटरसेक्शन जो है आपका सिंगलटन 0 है. तो दिस इम्प्लाइज 0. सिमिलरली x प्लस वाई आपका 0 है, y जो है आपका, y को हम लिख सकते हैं, y हमने यहाँ पे लिया था किसमें, y जो था आपका किसमें है, नल स्पेस ऑफ t माइनस लैम्डा की आइडेंटिटी का. तो y जो है आपका बिलोंग करता है नल स्पेस ऑफ t माइनस लैम्डा की आइडेंटिटी, एंड x प्लस वाई इज 0, y को मैं लिख सकता हूँ माइनस x, और x आपका मेंबर है रेंज का, रेंज ऑफ t माइनस लैम्डा की आइडेंटिटी, t माइनस लैम्डा की आइडेंटिटी. तो यहाँ से y जो है बिलोंग कर गया नल स्पेस में और उसके रेंज स्पेस के इंटरसेक्शन में, जो कि आपका सिंगलटन 0 होता है, बिलोंगिंग टू द लैम्डा की आइडेंटिटी इंटरसेक्शन रेंज ऑफ t माइनस लैम्डा की आइडेंटिटी, जो कि सिंगलटन 0 है. तो यहाँ से x भी 0 है और y भी 0 है. सो x इज 0 एंड y 0. x 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, x 0 है, तो इसका मतलब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, एंड ये आपका बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन 0 इम्प्लाइज ऑल द कोएफिशिएंट आर 0. तो यहाँ से क्या मिला, ए आईज आर 0, ए आई 0 फॉर एवरी आई की वैल्यू 1 2 3 अप टू m. सिमिलरली y इज 0, और y जो है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थिंग है w1 w2 अप टू wp, और ये उसकी बेसिस है. तो यहाँ से
This implies bi is 0 for every I key value 1, 2, 3 up to p. So from both ai is 0 for every I 1, 2, 3 up to m, and bi is 0 for every I 1, 2, 3 up to p. So this implies linear combination is 0. The linear combination is 0 implies all the coefficients are 0. All coefficients are 0. This implies the given set beta is linearly independent, and hence beta is a basis of the vector space V consisting of eigenvectors of T. Consisting of eigenvectors of T. So by definition, T is diagonalizable. So T is diagonalizable.